Okay, you are host. We made you co-host. You can share your screen. Yeah, ma'am. And simultaneously keep your explanation ready. Okay. Well, I've joined. Total number of people. Sharp 11 o'clock will start, madam. Okay, ma'am. I'll just start sharing my screen. Yeah. Before that, let me introduce you. Good morning, everyone. Good morning, Shrija ma'am, all the audience, students. We are very fortunate enough to have you with us. And our students are lucky enough to going to listen. Shrija ma'am. Madam is a well-experienced professor of Chaitram College of Nursing. Also, she is head of the department of child health nursing. She has vast experience of teaching, research, administration, and her subject of 14 years. Simultaneously, she is looking after clinical areas, and presently she was giving training to the nurses who are taking care of COVID-19 patient. And our Chaitram hospital was designated as red zone hospital, and they were fully indulged in taking care of patient with COVID-19. So we are fortunate enough, our students are getting opportunity to listen Shrija ma'am. She is going to share her real life experiences in it. Thank you so much, ma'am. I invite you to please start with your talk. Okay, thank you, ma'am. Okay, before starting my today's I request others to please mute themselves so that you can able to listen me clearly. So before starting my topic, I would like to thank Keshkali ma'am for giving me opportunity to share my views on this pandemic situation, especially on nursing concern and practices in the care of COVID-19 patients. Ma'am told me that from last couple of weeks, you people are continuously oriented with what is COVID, what all are the scenarios of COVID, what all are the signs and symptoms of COVID, and everything about the COVID and its various aspects. So today I just directly going to focus on the nursing concern and the practices of care of COVID patients. So in today's session, what we have going to learn that is strategies adopted for prevention of infection, nursing task force preparedness, that is very, very important. Practice in the care of COVID-19, what exactly we are practicing, and the very important one that is biomedical waste management that help us to prevent the spread of coronavirus. So before that, just I'm just giving. Shrija ma'am. Am I audible, ma'am? Hey, Shrija ma'am, you can use mixed language so that all Hindi medium students can also get benefited. Okay, ma'am. Fine. तो आप लोगों ने काफी कोविड-19 के बारे में पढ़ा है, चीजें की हैं और उसके बारे में आप जानते भी कि उनकी क्या वेरियस कैटेगरी है। आज हम डायरेक्टली बात करेंगे उन पेशेंट के बारे में, दोज हु आर कोविड पॉजिटिव, यानी कि कौन जो कि कोविड पॉजिटिव है irrespective of their clinical sign and symptoms। जैसे कि अभी के सिनेरियो से हमें पता चल रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि
क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स नहीं आते लेकिन वो लोग पॉजिटिव होते हैं, तो वो कंफर्मेशन हमें कहाँ से आता है? इफ ईदर दे हैव द कॉन्टैक्ट हिस्ट्री और अदर हिस्ट्री, या फिर डायरेक्ट केयर में इन्वॉल्व होते हैं लेकिन सिम्टम्स नहीं है, बट जब हम टेस्ट करते हैं तो दे कम पॉजिटिव जस्ट बिकॉज कि हमको सस्पेक्टेड है कि वो हो सकते हैं। तो हम लोग को क्या स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए? जैसे कि हमारा हॉस्पिटल एक कोविड हॉस्पिटल है, पूरा डेडिकेटेड है, पास्ट 2-3 मंथ से हम लोग कोविड पेशेंट को केयर कर रहे हैं। तो जब हमें ये पहली बार ये अपॉर्चुनिटी मिली थी तो वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि हाउ वी आर प्रिवेंटिंग मिक्सिंग ऑफ, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं नॉर्मल पॉपुलेशन को दूसरे पॉपुलेशन के साथ में, जैसे कि ग्रीन जोन के पेशेंट और रेड जोन के पेशेंट के लिए। तो अभी हमारी ग्रीन ओपीडीज भी स्टार्ट हो गई हैं और हम लोग ग्रीन जोन के पेशेंट्स को भी देखना स्टार्ट हो गए हैं। तो जो स्ट्रेटजीज अडॉप्ट की थी वो थी कि हम लोग, अगर हमारे पास कोई पेशेंट आता है, या तो वो डायरेक्ट रेफर होके आता है कोई सीएचसी कोई हॉस्पिटल से डायरेक्ट, जो कि ऑलरेडी कंफर्मेटिव केसेस है। अगर इन केस अगर हमारे पास जैसे कि ग्रीन जोन ओपीडी में भी है तो भी हमें स्क्रीन करना होता है। तो एट द एंट्रेंस आउटसाइड द हॉस्पिटल देयर इज अ फ्लू क्लिनिक, हम लोगों ने वो एस्टैब्लिश किया है जहां पेशेंट की स्क्रीनिंग होती है। जो हम लोग उसके बाद अगर वहां पे कंफर्मेटिव जो कोविड पेशेंट है उसको डायरेक्टली रेफर कर देते हैं कोविड एरिया में, कोविड यूनिट में, और जो नहीं है उनको ग्रीन जोन ओपीडी के अंदर हम लोग रेफर आउट करते हैं। जो सस्पेक्टेड है उनको हम लोग वैसे ही ट्रीट करते हैं जैसे कोरोना पेशेंट को ट्रीट करते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ रिस्क नहीं ले सकते कि बाद में अगर कंफर्म हो जाता है तो पेशेंट उसके बाद हम लोग जितने एक्सपोज हैं वो भी उसके ससेप्टेबल ग्रुप में आ जाए। तो यहाँ पे जो है वो यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, यूनिडायरेक्शनल यानी एक ही डायरेक्शन के अंदर सारी चीजें जा रही। नाउ द पेशेंट ट्राइजिंग सिस्टम, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है कोविड का तो हम उसको 3 चीजों में ट्राइजिंग करते हैं। जैसे कोहर्ट 1 दैट इज कोविड पॉजिटिव जो कि कंफर्मेटिव है, उसमें भी 3 कैटेगरी होती है, माइल्ड, लेवल 1 कैटेगरी, लेवल 2 कैटेगरी और लेवल 3 कैटेगरी। लेवल 1 जो होती है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ होती है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा सिम्टम्स नहीं होता है, हल्की खांसी हो रही होती है, पेशेंट ओके दिखता है, हमें एज सच कोई सिम्टोमेटिक दिखता नहीं है, बट दे आर हैविंग अ हिस्ट्री ऑफ अटैक। फिर सेकंड जो लेवल होता है, हाँ उनको डिस्निया होता है, सांस लेने में प्रॉब्लम, तकलीफ हो रही होती है, उनका सैचुरेशन वो मेंटेन नहीं कर पा रहे होते हैं, थक रहे होते हैं, थकान होती है, खांसी उनको चल रही होती है। तो ये जो 3-4 सिम्टम्स है वो उनके साथ होते हैं, लेकिन वो स्टेबल पेशेंट होते हैं। तीसरा लेवल जो है वो सिक, जो क्रिटिकल केयर बोलते हैं, जो कि 5% कैटेगरी में आता है, जो क्रिटिकली इल होती है, जिन्हें हमें डायरेक्ट आईसीयू के अंदर रेफर करना होता है। तो अगर हमारे पास कोरोना पेशेंट आते भी हैं तो उनका 3 लेवल होता है। और अगर हमारे पास सस्पेक्टेड केस, जैसे बहुत सारे रेफर्ड केस आते हैं जो कि सजेस्टिव होते हैं, जिसके अंदर क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम्स पूरे कोरोना के प्रेजेंट है लेकिन अभी तक रिजल्ट पेंडिंग है, लेकिन उसको भी हम कैसे डील करते हैं? जो रेड जोन है वैसा ही डील करते हैं, आइसोलेट करते हैं और वही सारी केयर और प्रिकॉशन जो कि हम कोरोना पेशेंट के लिए यूज कर रहे होते हैं। देन कम्स कोहर्ट 3 ग्रुप जो होता है, जो कम्प्लीटली नेगेटिव होता है, रिजल्ट उनका नेगेटिव आया है तो हम उनको होम, उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होती है तो हम सजेस्ट करते हैं उसको होम क्वारंटाइन के लिए। लेकिन अगर सिम्टम्स अपीयर है, सिम्टम्स यानी कि फीवर आ रहा है, सोर थ्रोट है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है और उनको बॉडी पेन वगैरह सब हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो हम उसको रिपीट टेस्ट के लिए बोलते हैं। तो ये हमारे 3 कोहर्ट होते हैं जिसको ट्राइजिंग बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल होता है इस ट्राइजिंग के अंदर कि उन्हें आइडेंटिफाई करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक आता है और सडनली डिटीरियोरेट हो जाता है, तो उस केस में अगर हमने इमीडिएट मैनेजमेंट नहीं लिया या नहीं किया तो पेशेंट को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। देन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड, हॉस्पिटल, पूरा हॉस्पिटल जो है वो 2 जोन में डिवाइडेड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, रेड जोन एंड ग्रीन जोन। दोनों के आप यूनिफॉर्म भी देख सकते हैं। रेड जोन में जो काम कर रहे हैं उनका एक्सक्लूसिवली जो होते हैं वो कोविड पेशेंट्स के लिए होते हैं या फिर कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट के लिए होते हैं, और वो स्टाफ जो कि कोविड पेशेंट की केयर कर रहे हैं उसके अंदर होते हैं। सेकेंड है ग्रीन जोन, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, क्योंकि आप खाली स्टाफिंग से तो होगा नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन पूरा काम करता है, इन्फेक्शन कंट्रोल डिपार्टमेंट पूरा काम करता है और ग्रीन जोन ओपीडी में भी काम कर रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो जो ऊपर में ब्लू में है जिन्होंने पूरा पीपी पहना हुआ है वो पूरे रेड जोन की स्टाफ है, और नीचे जो है वो आप ग्रीन में देखेंगे वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है। दोनों की ड्रेसिंग में देखेंगे पूरा ग्रीन गाउन उन्होंने भी पहना है, N95 मास्क उन्होंने भी पहना है, कैप भी पहना है,
लेकिन जो पीपी किट जो होता है, जो डायरेक्ट पेशेंट केयर में इन्वॉल्व होते हैं, खाली वो लोग पहनते हैं। अब जो है पूरे हॉस्पिटल में जो है सिंगल एंट्री सिस्टम किया हुआ है। रेड जोन में जो काम करते हैं उनके लिए अलग एंट्री सिस्टम है, और जो ग्रीन जो जोन में काम करते हैं वो अलग एंट्री सिस्टम है। दोनों को पूरा डिवाइड करके बाइफरकेट कर दिया गया है ताकि दोनों की मिक्सिंग ना हो। रेड जोन की फैकल्टी, स्टाफ या काम करने वाला कोई भी बंदा ग्रीन जोन के लोगों के डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं आता है, सिर्फ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन ही होता है उनके साथ, डायरेक्ट कांटेक्ट उनके साथ हम लोग नहीं करते हैं। फिर ये फोटो जो है वो फ्लू क्लिनिक का है, और इसमें जो खड़े हैं वो हमारी फैकल्टी है, कॉलेज ऑफ नर्सिंग की फैकल्टी है, जो कि आजकल रोटेशन में फ्लू क्लिनिक में पोस्टेड है, जो कि ग्रीन जोन ओपीडी में है। नॉर्मली हमारे पास डायरेक्टली रेफर्ड केस आ रहे हैं, तो इनका काम ये एटेंडेंस है। आपने देखा होगा एक पूरा वायर बंधा हुआ है, 2 मीटर का डिस्टेंस क्रिएट है, हाथ में उनके थर्मल स्कैनर है और हैंड रब रखा हुआ है। पेशेंट जो आता है उसको मास्क पहनना कंपलसरी है। अगर आपको सिम्टम्स दिखते हैं, पेशेंट और अटेंडर दोनों को पहनना कंपलसरी है, लेकिन अगर साइनस सिम्टम आपको उसके दिखते हैं कोरोना के, तो उनको ट्रिपल लेयर मास्क प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि इस मास्क से फिर प्रिवेंशन के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो उनको हम सर्जिकल मास्क जिसे ट्रिपल लेयर मास्क कहते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। कोई भी मिक्सिंग नहीं होती है ग्रीन जोन और रेड जोन के लोगों के बीच में। जो स्टाफ यहाँ पे रेड जोन में काम कर रहा है वो डायरेक्टली यहाँ से होटल में जाता है, कैंपस में नहीं आता है। यहाँ पे उनका सिंगल एंट्री है, यहाँ से सीधा वो लोग अपना डॉनिंग डॉफिंग करके सीधा पूरा वॉश आउट होके सीधा होटल में जाते हैं। होटल में डेजिग्नेटेड रूम से उनका कोई भी मिक्सिंग यहाँ पे नहीं होता है। अब यहाँ पे जो फ्लू क्लिनिक आते हैं वहाँ पे एक चेकलिस्ट होती है जो पूछना होता है कि क्या करना है। तो उनसे पूछा जाता है कि फीवर है क्या, फैटिग थकान है क्या, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बॉडी पेन या मसल पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है, नाक बह रही है क्या, गले में दर्द है, डायरिया है, इंसोम्निया है, रेस्टलेसनेस है, कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है, कोई ट्रैवल हिस्ट्री है, आसपास में कोई लेटेस्ट में कोरोना पॉजिटिव हुआ है, कोई मेड या वर्कर आ रही है जो कि आपके अभी लेटेस्टली पता चला है कि वो कोरोना पॉजिटिव है, ये सारी हिस्ट्री। तो वो पेशेंट इंटरव्यू एक चेकलिस्ट होता है जिसके अंदर वो पूरी हिस्ट्री हम लेते हैं। कोई भी मिक्सिंग नहीं होता है ग्रीन जोन एंड रेड जोन के अंदर। स्टाफ मूवमेंट का एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल बना है कि स्टाफ कहाँ से आएंगे, कहाँ जाएंगे और फिर क्या करेंगे। सेपरेट होता है रूट्स, लिफ्ट, कोविड वार्ड और आइसोलेशन के लिए जो लिफ्ट है वो कॉमन पीपल यानी कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है या ग्रीन जोन के स्टाफ है वो यूज नहीं कर दे। पूरा उसको बाइफरकेट करके सील कर दिया गया है ताकि दोनों की मिक्सिंग ना हो। अगर हमारा हॉस्पिटल देखें तो 3 फ्लोर्स हैं, जिसमें से ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो है वो कंप्लीटली और थर्ड फ्लोर कंप्लीटली कोरोना के लिए डेडिकेटेड है। ग्राउंड फ्लोर का जो एडमिन ब्लॉक है वो पूरा सील्ड कर दिया गया है, उस जोन में रेड और ग्रीन का मिक्सिंग नहीं है। बीच में एक सेकेंड फ्लोर है जहाँ पे पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव, जो हमने आपको प्रीवियस फोटोग्राफ दिखाई थी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जहाँ बैठते हैं, तो किसी भी तरह से मिक्सिंग नहीं होती है जिससे कि इन्फेक्शन प्रिवेंशन होता है। तो यहाँ पे इन्फेक्शन कंट्रोल की पॉलिसी है और पूरे प्रिवेंशन की पॉलिसी है। ये हमारा ओपीडी और ओपीडी गाइडलाइन है जो आपने अभी फ्लू क्लिनिक यहाँ पे देखा। यहाँ स्क्रीन होने के बाद जब ये आपको क्लीन चिट देते हैं और रजिस्ट्रेशन करते हैं, तब हम इनको ओपीडीज के अंदर शंट आउट करते हैं। ओपीडीज में आपने देखा होगा अगर वहां पे कोई नर्सिंग स्टाफ है और डॉक्टर है तो वो पूरा पीपी किट पहनता है, और अगर वहां पे पेशेंट जा रहा है तो पेशेंट को हाथ वाली चेयर प्रोवाइड नहीं की जाती, स्टूल प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि हाथ वाली चेयर प्रोवाइड करते तो वो उसको टच करेंगे, कंटामिनेशन का रिस्क है, तो उनको स्टूल प्रोवाइड किया जाता है और 2 मीटर की दूरी पे उनको बिठाया जाता है। कोई ऑस्कल्टेशन या कुछ करना होता है तो दोनों मास्क, उन्होंने पूरा पीपी किट पहना है, मास्क करते तुरंत वो अपने आप को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो ये जो है वो ग्रीन जोन ओपीडी का है, और जो इन्होंने ड्रेस पहनी वो ग्रीन जोन ओपीडी की पहनी है, जिसमें उनको अपनी ड्रेस चेंज करनी है, ग्रीन गाउन पहनना है और उसके ऊपर जो आपका स्पिल प्रूफ एप्रन होता है वो पहनना होता है। हर बार जो ओपीडी के अंदर जब भी एक पेशेंट चला जाता है, दूसरे पेशेंट आने से पहले स्टूल को डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो हम 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन का स्प्रे कर देते हैं तो उससे वो डिसइंफेक्शन हो जाता है। कोशिश की जाती है कि पेशेंट किसी भी चीज को टच ना करे। अब अगर उसको रिपोर्ट दिखानी है तो स्कैन करके डॉक्टर को अपडेट करता है, डॉक्टर डायरेक्ट फाइल को टच नहीं करते हैं। तो ये सारे प्रिकॉशन रखने से फायदा ये होता है कि जो क्रॉस कंटामिनेशन है उसका रिस्क जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि कोविड वार्ड्स की कैसा दिखता है, क्या चीजें होती है,
तो अब सबसे पहले आता है आइसोलेशन वार्ड। आइसोलेशन वार्ड में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री साइनेज लगा हुआ है, नो विजिटर्स आर अलाउड। अगर बच्चा है और पूरी फैमिली एक साथ आ रही है तो उनको एक साथ रखा जाता है, बेबी है तो उसके साथ उनकी मदर को भी रख सकते हैं, बट उसके अलावा कोई भी विजिटर्स अलाउड नहीं है। रेस्ट्रिक्टेड जोन है, बाहर भी हॉस्पिटल से देखेंगे तो दो बाइफर्केशन है, एक रेस्ट्रिक्टेड जोन है और दूसरा ग्रीन जोन में जाने का बाइफर्केशन है। कोविड-19 के लिए वैसे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि आइसोलेशन रूम होने चाहिए, तो हमारे पास प्राइवेट, सेमी प्राइवेट, न्यू सर्जिकल रूम है। और इसके अलावा अगर जनरल वार्ड में अगर पेशेंट हम लेते हैं तो एक से दूसरे पेशेंट के बीच में कम से कम मिनिमम 3 फीट का डिस्टेंस रखा जाता है ताकि क्रॉस कंटामिनेशन का जो रिस्क है वो प्रिवेंट हो जाए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जहां पे हम लोग कोरोना पेशेंट को ट्रीट कर रहे होते हैं वहां पे हमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना होता है। नेगेटिव प्रेशर का मतलब है एग्जॉस्ट फैन, जैसे हम हमारे किचन में लगाते हैं तो पूरा धुआं बाहर करता है, इसी तरह जहां पे कोरोना के पेशेंट एक साथ ट्रीट होते हैं वहां पे हम लोग एग्जॉस्ट लगाते हैं या फिर नेगेटिव प्रेशर जनरेट करते हैं ताकि उस पर्टिकुलर यूनिट में वायरल लोड जो है वो कम हो जाए। अगर वायरल लोड ज्यादा होगा तो वहां पे काम करने वाले लोगों को इन्फेक्शन का रिस्क ज्यादा होगा इन केस अगर पीपी कहीं भी किसी भी पॉइंट पे मिस होता है। दूसरा, उस पेशेंट को भी री इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं, तो वहां पे हम लोग करते हैं कि नेगेटिव प्रेशर जनरेट करना है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, सिंपल है। अगर हम लोग सजेस्ट करते हैं जैसे होम क्वारंटाइन अगर बोलते हैं तो हम बोलते हैं कि जो भी पेशेंट जहां भी रहता है वो विंडो वाले रूम में रहे ताकि वहाँ एरिएशन हो, क्योंकि आपको पता होगा जब एक बार कोरोना वायरस बाहर एनवायरमेंट में निकलता है तो बहुत ज्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाता है। इसीलिए हम बोलते हैं मिनिमम 2 फीट की दूरी रखें, 2 मीटर की दूरी रखें। 1 मीटर इज मिनिमम 1 मीटर बोलते हैं, लेकिन आइडियली हम बोले प्रिकॉशनरी तो 2 मीटर का डिस्टेंस होना चाहिए, क्योंकि उतना लॉन्ग जो है हम जो बात करते हैं, छींकते हैं, खांसते हैं उस टाइम उतना ड्रॉपलेट ट्रेवल नहीं करता है। और जितने भी पेशेंट है उनके लिए सेपरेट टॉयलेट्स रहते हैं, एक पेशेंट दूसरे पेशेंट का टॉयलेट यूज नहीं करेगा। देन रिकमेंडेशन जो है उसके अंदर जो होता है डेजिग्नेटेड एंट्री और एग्जिट, जहां से हमने एंट्री की है वहां से हम एग्जिट नहीं करते हैं। यूनिडायरेक्शनल फ्लो है, यानी कि अगर हमारे जाने का रास्ता है तो उसको तार बांध के 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, यहाँ से एंट्री करेंगे और वहां से एग्जिट करेंगे। इसीलिए क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जैसे कि हाउसकीपिंग के स्टाफ्स है, क्लीनिंग स्टाफ है, ये सब आते हैं, वो इतने कंटामिनेटेड नहीं होते जितने कि उस एरिया में काम करने वाले लोग होते हैं। तो वो वंस जो पीपी किट पहन लेते हैं तो वो जो ऑलरेडी काम करके एक्सपोज स्टाफ है उनके कांटेक्ट में डायरेक्ट ना आए, इसीलिए यूनिडायरेक्शनल फ्लो रखा जाता है और लिखा जाता है यहाँ से आपको एंट्री करना है और यहाँ से आपको एग्जिट करना है। डेजिग्नेटेड एरिया फॉर डॉनिंग एंड डॉफिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ स्टाफ, बीइंग अ स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि डॉनिंग एंड डॉफिंग बहुत बहुत जरूरी है। जितने भी केसेस अगर आपने सुने होंगे इस हॉस्पिटल में इतने स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए, उतने स्टाफ इन्फेक्टेड हो गए, वो मेनली जो इश्यू है दैट इज बिकॉज ऑफ डॉनिंग एंड डॉफिंग। पीपी किट अवेलेबल हो जाता है लेकिन उन्हें नहीं पता होता है कि उसको पहनना कहाँ है, उतारना कहाँ है। डॉनिंग एरिया अलग होता है, पहनने का एरिया रूम अलग होता है, उतारने का रूम अलग होता है। दोनों एक रूम में हम नहीं करते हैं, क्योंकि पहनने के टाइम पे हम कंटामिनेटेड नहीं होते हैं लेकिन उतारने के टाइम पे हम कंटामिनेटेड होते हैं। तो डॉनिंग एंड डॉफिंग एरिया अलग अलग होता है। दोनों रूम के अंदर हैंड रब और सोप एंड वाटर रखा जाता है, बड़े बड़े डस्टबिन रखे जाते हैं और किट्स रखी जाती है जहाँ पे वो लोग पहनेंगे और उतारेंगे। स्टूल रखा जाता है। डॉनिंग और डॉफिंग दोनों आराम से करना होता है, हड़बड़ी में नहीं करना है। 15 मिनट आधे घंटे पहले पहुंचो। पहनने में कम से कम प्रॉपर डॉनिंग एंड डॉफिंग में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है। तो अगर आप कभी भी कोविड डायरेक्टेड एरिया में जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, डॉनिंग एरिया में जाना होता है। डॉनिंग एरिया में जाने के बाद पहले स्टाफ जाता है, पूरा जो उन्होंने कपड़े पहने वो चेंज करके ग्रीन गाउन पहनता है। ग्रीन गाउन पहनने के बाद वो लोग डॉनिंग एरिया में जाते हैं। डॉनिंग एरिया वो होता है जहाँ पे पीपी किट अवेलेबल होता है। डॉनिंग एरिया में जाके वो पूरा पीपी किट पहनते हैं। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि पीपी किट पहनने के स्टेप्स क्या है जो फॉलो करना बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक बार उन्होंने पूरा पीपी किट पहन लिया, पूरा सील कर लिया। अब एक चीज याद रखना कि वो पूरा सील होना है हर जगह से। ऑटो की एंट्री होती रहती है, कोई इश्यू नहीं है। N95 पहना होता है। और डॉफिंग एरिया होता है जब पेशेंट की केयर करने के बाद जहाँ पे जाते हैं। डॉफिंग एरिया और डॉनिंग एरिया एक नहीं होता है, दोनों के लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड रूम होते हैं। जो डॉफिंग एरिया होता है वहां पे हैंड रब की फैसिलिटी जो होती है फुट ऑपरेटेड होनी चाहिए या एल्बो ऑपरेटेड रहती है।
येलो बिन्स रखे होते हैं जहां पे जितने भी कोविड कंटामिनेटेड चीजें हैं वो डायरेक्टली उस येलो बिन में डलता है और किसी में नहीं डलता है, येलो बिन के अंदर डलता है। तो येलो बिन्स वहां रखे होते हैं और ये सारी चीजें वहां पे अवेलेबल रहती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है व्हाई वी एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर सो पैनिक। हम लोग बहुत पैनिक है। इनिशियली यहाँ पर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी कि स्टाफ डरे हुए थे। हाँ, डर लगता है, सबको लगता है, जान का खतरा सबको होता है। बीइंग अ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी डर रहता है, बिल्कुल रहता है। लेकिन अगर एक बार आपको नॉलेज हो गया और आप Madam, I think there is some connection issue. We cannot hear you, ma'am. Hello, ma'am. Hello, Shija ma'am. Please wait. I think yes, there is some connection issue. Soon, madam will rejoin us. फोन लगाओ। Hello, Shija ma'am. Hello, ma'am. हेलो मैम। मैम आप अनम्यूट करें। मुझे अनेबल कर रखा है, होस्ट ने म्यूट अनम्यूट नहीं कर पा रही मैं। होस्ट इज म्यूटेड मी और होस्ट ने स्क्रीन शेयर भी म्यूट कर रखा है। मैम आप तो को होस्ट हैं। हाँ, अब हो गया है अनम्यूट। ये स्क्रीन शेयर भी नहीं हो Hello, Shija ma'am. हाँ मैम, एक्चुअली डिसेबल्ड होस्ट करके आ रहा था मैम। Okay. ओके, आई कंटिन्यू मैम। मैम जस्ट से आप लोग मिस किए हैं आउट इसको प्रिपेयर्डनेस से। ओके, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या प्रिपरेशन हमें करना है, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, वो सारी चीजें हमें देखना होता है यहाँ पे। हेलो मैम, एम आई एबल टू ऑडिबल मैम? हेलो मैम, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। Okay, fine.
So as a healthcare professional, what exactly we have to do? Ma'am, please, can you stop annotation from your side, admin side? Because participant might be doing annotations. Okay. So these are the preparedness, nursing preparedness के अंदर हमें देखना है कि हमें क्या-क्या चीजें करनी है. तो first and foremost thing that we have to prepare ourselves. Exactly हमें क्या prepare करना है? तो first physically. तो what is the meaning of physical preparedness? Physical preparedness का meaning होता है कि हमें फिजिकली फिट रहना है, यानी कि दिस ड्यूरेशन वी हैव टू ईट हेल्दी फूड आइटम्स, अवॉइड जंक फूड आइटम्स, मेंटली हेल्दी. अभी रिसेंट कल का अगर इंसिडेंस देखें कि सुसाइड का इंसिडेंस हुआ था, ये सब मेंटल हेल्थ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और जब हमें पता चलता है कि वी आर गोइंग टू वर्क इन अ कोविड हॉस्पिटल और अ कोविड डेजिग्नेटेड सेंटर, इन अ डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हम पेशेंट के आ रहे हैं, तो हमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि हम कहीं हमें ना हो जाए, हमारे कारण हमारे फैमिली को ना हो जाए. तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट नॉलेज इज हैविंग एंड मेंटली वी हैव टू प्रिपेयर बिकॉज वी आर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स. हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल हैं. अगर हम प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे तो हमें इन्फेक्शन नहीं होगा. तो इन्फेक्शन होना नहीं होना ये हमारे हाथ में होता है 99.99%. क्यों होता है? क्योंकि एक तो हमें हेल्दी रहना है, डाइट हेल्दी लेनी है, फिजिकल एक्टिविटी हमें करनी है, और उसके साथ में मेंटल प्रिपेयर्डनेस बहुत जरूरी है. अगर मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो डिस्ट्रेसिंग होता है. स्टार्टिंग में थोड़ा सा ट्रबल आया था, बट वंस द स्टाफ स्टार्टेड डूइंग वर्क तो दे आर एंजॉयिंग थिंग. फिर होता है इमोशनली. इमोशनल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि घर वाले बोलते हैं कि भैया कोविड एरिया में काम नहीं करना है. तो ऐसा नहीं है कि कोविड एरिया में काम करने से प्रॉब्लम है. अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर्ड हैं, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेंगे, तो कोविड एरिया में काम करने से आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी. Stay positive, nothing will be happen. पिछले 3-4 महीने से स्टाफ काम कर रहे हैं, उनका एक रूटीन सेट है, इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी जो है वो स्ट्रिक्टली हो रही है, तो उस टाइम पे प्रॉब्लम नहीं होगी. डू नॉट पैनिक. एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब पेशेंट आपके पास आता है, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. अगर आपका रूम प्रिपेयर नहीं है, जैसे पेशेंट को रिसीव करने के लिए नहीं है, तो होल्ड डाउन, नो इश्यूज. क्रिटिकल पेशेंट है, डायरेक्टली हम आईसीयू में शिफ्ट कर सकते हैं उसको. पैनिक होने की जरूरत नहीं है. सफिशिएंट अमाउंट में स्टाफ होना चाहिए. अब बात आती है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट की कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स खुद को कैसे प्रिवेंट करके रखेंगे. तो सबसे इंपॉर्टेंट है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की गाइडलाइंस है कि HCQ लेना है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लेना है. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो होती है उसको लेने से पहले ECG लेना बहुत बहुत कंपलसरी होता है. ECG लिए बिना, थोरो हिस्ट्री लिए बिना हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं लेनी होती है. और उसके अलावा जो है सप्लीमेंट में हम देखते हैं कि हम जो हमारे स्टाफ को देते हैं वो मल्टीविटामिन्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रेकमेंड किया है विटामिन C 100 mg और मल्टीविटामिन्स वंस अ डे फॉर 10 days. हम लोगों ने मल्टीविटामिन्स उनको दिया और हेल्दी डाइट हम उनको प्रोवाइड करते हैं, दैट इज प्रोटीन रिच डाइट. वाई प्रोटीन रिच डाइट? तो आपको पता होगा कि जो हमारी एंटीबॉडीज जो बनती है, जो इम्यून रिस्पॉन्स के लिए जो हमारे सिस्टम में एंटीबॉडीज बनती है वो प्रोटीन से बनती है. तो यू हैव टू टेक अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन, जो कि जंक फूड में अवेलेबल नहीं होता है. दे आर प्योर कार्ब्स. तो कोशिश की जाए कि अच्छे अमाउंट पे आप फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें और साथ में प्रोटीन्स लें. तो यहाँ पे जो वेज एंड नॉन वेज खाते हैं उसके अकॉर्डिंग, उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम स्टाफ को वो प्रोवाइड करते हैं. जैसे अंडा है, चिकन है, ये नॉन वेज खाने वालों के लिए है. दाल है, सोयाबीन बड़ी है, सोयाबीन से बनी चीजें हैं. प्रोटीन रिच अदर थिंग्स है, वो सारी चीजें हम लोग, जैसे पनीर वगैरह है, वो सब जो नॉन वेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए प्रोवाइड किया जाता है. साथ में फ्रूट्स प्रोवाइड किया जाता है और मल्टीविटामिन्स देते हैं. जिंक का सप्लीमेंट 20 mg फॉर 10 days देना होता है. तो ये 3 चीजें हैं जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल के लिए है. हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है, वो सिर्फ डॉक्टर. बाकी आप मल्टीविटामिन्स ले सकते हैं, जिंक ले सकते हैं, लेकिन HCQ अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर से क्लैरिफिकेशन चाहिए होता है. क्योंकि अगर आपने ले लिया और कुछ प्रॉब्लम एनकाउंटर हुई तो उसमें कॉम्प्लिकेशन के रिस्क ज्यादा होते हैं. फिर उसके बाद होता है ये सब, हमने फिजिकली फिट हो गए. योगा मेडिटेशन बहुत 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 जरूरी है. कई बार छोटे बच्चों को समझ में नहीं आता कि क्यों योगा करना है, क्यों मेडिटेशन करना है. अनुलोम विलोम करने से आपका जो बॉडी है, जो आपका लंग एरिया है, जो कि डेड स्पेस बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं शोल्डर के तरफ और
पीठ की तरफ जो होता है डेड स्पेस होता है, जो कि लंग का वो पोर्शन हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर रहे होते हैं, वो ओपन होते हैं, एल्वेओलाई ओपन होती है। तो अगर इन केस इन्फेक्शन हुआ भी तो माइल्ड फॉर्म में होके निकल जाता है। अब एक रीसेंट एग्जांपल देती हूँ, अभी रिसेंटली एक अलग हॉस्पिटल से हमारे पास 18 to 20 स्टाफ आए थे जो कि कोविड पॉजिटिव थे विद देयर किड्स, बच्चों के साथ आए हुए थे कि उनका, लेकिन सब माइल्ड सिम्टम्स के साथ। माइल्ड सिम्टम यानी वो आए क्योंकि वो पॉजिटिव थे तो उनको आइसोलेट करना जरूरी था, हमने उनको रखा, 72 आवर्स ऑब्जर्व किया, सेकेंड टेस्ट के लिए हमने रिपोर्ट उनकी ली, लेकिन जब उनका कोई सिम्टम प्रोग्रेस नहीं हुआ तो उनको स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन के गाइडलाइन के साथ में उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। तो वो क्यों था? क्योंकि वो मेडिकल प्रोफेशनल्स थे, उन्हें पता था कि हाउ टू बी हेल्दी। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग बहुत एडिक्टेड होते हैं जंक फूड के लिए, तो वो नहीं लेना है। कम से कम इस कोरोना टाइम में आप अवॉइड करें बहुत हाई कार्ब फूड और वो सारी चीजें। मेडिटेशन योगा के अंदर हम लोग बोलेंगे कि डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपको करनी है सोते वक्त। सोते हैं जब आप, तो प्रोन पोजीशन में सोना है। अब अगर आप पूछेंगे मैम आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो दैट इज कि हमारा जो पोस्टीरियर लंग होता है उसकी कुछ एल्वियोलाई होती है जो बहुत यूज्ड नहीं होती है, तो इट इज अ प्रेफर्ड पोजीशन। जब आप जग रहे हैं तो आप प्रोन पोजीशन में सोएंगे तो आपकी जो पोस्टीरियर एल्वियोलाई है वो ओपन होगी, जो इतने सालों से यूज नहीं हो रही है। तो प्रोन पोजीशन जो होती है वो प्रेफर्ड होती है, जैसे अवेक प्रोन बोलते हैं, जगे हैं। पेशेंट के कंडीशन में जब जगा है, कॉन्शियस है, तब हमने प्रोन दिया। हमारी कंडीशन में अगर हम प्रोन में सोते हैं तो वो लंग एक्सपैंड होते हैं। तो फिजिकली हम फिट है, मेंटली हम फिट है, इमोशनली हम, आपको एक एग्जांपल देते हैं कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि भैया आप तो नर्सिंग छोड़ दो, तब हमारे बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो उन्होंने खुद वॉलंटरी डिसाइड लिया नहीं हम जाएंगे, और वो अभी कोरोना वार्ड में पिछले 3 महीने से काम कर रहे हैं। तो वो इमोशनली आपको अपने फैमिली मेंबर्स को समझाना होता है कि नहीं हमें काम करना है। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो हम नीचे बताने जा रहे हैं, अंडरग्रो ट्रेनिंग प्रोग्राम। बिना ट्रेनिंग प्रोग्राम के डायरेक्टली कोरोना वार्ड में नहीं जाना होता है, आपको प्रॉपरली ट्रेनिंग लेनी होती है। इन्फेक्शन कंट्रोल पॉलिसी की, पीपी किट की डॉनिंग एंड डॉफिंग की ट्रेनिंग लेनी होती है, और इन्फेक्शन कंट्रोल की न्यू गाइडलाइन जो है वो आपको थॉरली पता होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज हैंड वॉशिंग, जो आपको पता है कि आपको यू हैव टू फॉलो द 6 स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग। तो मैं बहुत ज्यादा इस पे एम्फेसाइज नहीं कर रही क्योंकि बहुत सारे एड्स आ रहे हैं, रोज टीवी पे आ रहा है। आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा, होप सो मैं ये उम्मीद करती हूँ जब इतने सारे हम एप्स, महिंद्रा ये वो गेमिंग ऐप सब डाल सकते हैं तो हम एक आरोग्य सेतु ऐप भी डाल सकते हैं जो कि गवर्नमेंट ने मैंडेटरी करके रखा हुआ है। और हैंड वॉशिंग के प्रोटोकॉल बिल्कुल फॉलो करने हैं। कहीं भी नेवर टच योर फेस विदाउट, खुजली आ रही है, पसीना आ रहा है, नाक में खुजली आ रही है, मत टच कीजिए जब तक कि आपने हैंड रब यूज नहीं किया है, हैंड वॉश नहीं किया है, फेस को टच नहीं करना है। देन कम्स द कब हमें हैंड वॉशिंग करनी है, जब हम पेशेंट केयर करते हैं। तो दैट्स 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड वॉशिंग दैट वी हैव टू बी केप्ट इन माइंड बिफोर टचिंग द पेशेंट। पेशेंट को टच करने से पहले आपको हैंड वॉशिंग करनी है। कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं, भले ही क्लीन प्रोसीजर कर रहे हैं, सेप्टिक प्रोसीजर कर रहे हैं, उससे पहले आपको हैंड रब या हैंड वॉश यूज करना है। फिर उसके बाद अगर आप बॉडी फ्लूइड के एक्सपोजर में आए तो आपको हैंड वॉश करना है। पेशेंट को टच किया तब भी हैंड वॉश करना है आफ्टर टचिंग द पेशेंट। एंड उसकी सराउंडिंग्स, जैसे कि आप बेड साइड लॉकर पे गए, आपने उसका आईवी कैनुला चेंज किया या ठीक किया, जस्ट उसके पास गए तो भी आपको हैंड रब करना है, यानी सराउंडिंग में कहीं भी करना है तो यू हैव टू यूज द हैंड रब। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब हम पेशेंट के पास होते हैं और हैंड रब करते हैं तो हमने डबल या ट्रिपल ग्लविंग की होती है, यानी सिर्फ हम सिंगल लेयर ऑफ ग्लव नहीं पहनते, डबल, मिनिमम डबल। एंड जब हम डायरेक्ट पेशेंट केयर, जो क्रिटिकल केयर पेशेंट होते हैं आईसीयू के अंदर, तो हम 3 ग्लव्स पहनते हैं एक साथ, एक के ऊपर एक, दैट इज डबल एंड ट्रिपल ग्लविंग कहते हैं जिसको। और हम जो हैंड रब कर रहे होते हैं वो ग्लव्स के ऊपर से कर रहे होते हैं कि कंटामिनेटेड है तो हटा देंगे, अदरवाइज जो हैंड वॉशिंग है वो पूरा कफ तक हम पूरा कंप्लीट करने के बाद उस ग्लव्स के ऊपर से हम हैंड वॉशिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर से हैंड रब कर रहे हैं, क्योंकि हमें डेजिग्नेटेड पेशेंट अलॉटेड रहता है और हमें चीजें करनी होती है। मोर कंटामिनेटेड विजिबल कंटामिनेशन है तो हम लोग उसको रिमूव करके नेक्स्ट ग्लव पहनते हैं, लेकिन अंदर ऑलरेडी 2 ग्लविंग होती है। तो डबल ग्लविंग इज प्रिफर्ड, ट्रिपल ग्लविंग इज प्रिफर्ड। सिंगल ग्लविंग से डायरेक्ट पेशेंट केयर में नहीं हो पाता है, हमें डबल ट्रिपल करना होता है, क्योंकि अगर एक भी लेयर निकलती है तो नेक्स्ट लेयर जो होती है वो आपकी प्रोटेक्शन में। मैं डॉनिंग और डॉफिंग के स्टेप्स में आपको वो चीजें बताऊंगी। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ डॉनिंग। सबसे इंपॉर्टेंट की डॉनिंग के स्टेप्स आपको कैसे फॉलो करने हैं, क्या पहनना है।
तो सबसे पहले आप जैसे ही डॉनिंग एरिया में जाते हैं, जो आप घर से पहन के आए कपड़े हैं वो चेंज करते हैं, और स्क्रब जो कपड़े, जैसे आप ओटी में जाते हैं, ओटी में ड्यूटी करते हैं तो स्क्रब ग्रीन गाउन होता है या ग्रीन स्क्रब्स होते हैं, वो हमें पहनना होता है। ये कब पहनना होता है? हैंड वॉश करके ही पहनना होता है। चेंज किया, उसके बाद जब हमने स्क्रब कपड़े पहन लिए तो सेकंड जो होता है वो हम करते हैं शू कवर। शू कवर को हम पहनते हैं, और जो कि हमारे शूज को प्रिवेंट करता है। तो शूज पहना हुआ है, उसके ऊपर से हम शू कवर पहन रहे हैं। फिर शू कवर पहना है क्योंकि वो लोअर एरिया है, तो आपको दोबारा हैंड वॉश करना है। फिर हैंड वॉश करके, हैंड रब करके आप N95 मास्क यूज करते हैं। जैसा आप यहाँ पे फोटो में देख रहे हैं कि हाउ टू होल्ड द N95 मास्क। आगे से होल्ड करते हैं, पहले पीछे वाला रखते हैं और फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला रख के उसको पीछे से फिट करते हैं। वहां पीछे फिटिंग के लिए फैसिलिटी अवेलेबल होती है। तो हम N95, अगर आप पहली बार में अकेले डॉनिंग और डॉनिंग नहीं कर पा रहे तो आप अपने साथ एक कंपनी ले जा सकते हैं जो आपके साथ में उस वार्ड में काम करने वाला है। आराम से बैठ के डॉनिंग करना है, खड़े होके डिस्को करके गिरते हुए नहीं करना है। चेयर वहां पे डेजिग्नेटेड होती है, बैठ के शू कवर पहनना है, हैंड रब करना है, किसी भी स्टेप को मिस नहीं करना है। देन N95 मास्क को पहन लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे? कैप को पहनते हैं। कैप पहनने के बाद N95 के ऊपर हम सर्जिकल मास्क पहन लेते हैं। फिर उसके ऊपर गोगल पहनते हैं, गोगल जो कि हमारा आंखों को प्रोटेक्ट करता है। फिर गोगल पहनने के बाद हम स्क्रब करते हैं। स्क्रब करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? गाउन पहनते हैं। गाउन पहनने के बाद हम 2 ग्लव्स पहनते हैं। एक ग्लव्स जो होता है वो अंदर की ओर होता है, और जो सेकंड ग्लव्स पहनते हैं वो जो सर्जिकल ग्लव्स है वो आपके कफ के ऊपर से होता है। अब इसके बाद हमारे यहाँ पे एक और चीज पहनी जाती है, दैट इज फेस शील्ड। गोगल्स के ऊपर से फेस शील्ड भी रखा जाता है ताकि पूरा आपका जो है वो सील हो जाए, तो उस टाइम पे आप आराम से, तो ये पूरे स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं ड्यूरिंग डॉनिंग। अब इम्पॉर्टेंट, डॉनिंग से इम्पॉर्टेंट क्या है? डॉफिंग, क्योंकि इन्फेक्शन डॉनिंग के टाइम में नहीं होता है। इन्फेक्शन जो होता है, जो भी इन्फेक्शन हमें लगता है वो कब लगता है? डॉफिंग के टाइम पे, क्योंकि डॉनिंग के टाइम तक हम पेशेंट के कोई कांटेक्ट में नहीं आए होते हैं। तो ये हम आराम से बैठ के पूरा फिटिंग के साथ पूरा अच्छे से पैक होके करते हैं। इन्फेक्शन का जो हाई रिस्क होता है वो होता है डॉफिंग के टाइम में। डॉफिंग यानी जब आपने पेशेंट केयर कर लिया है, उसके बाद जो आप PPE किट, पर्सनल प्रोटेक्टिव किट, जब आप उतार रहे होते हैं, अगर इसमें आपने कहीं भी गलती की तो इन्फेक्शन जरूर होगा। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि आप कैसे उसको रिमूव करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिफोर डॉफिंग, सबसे पहले जब आप वहां पेशेंट एरिया से आते हैं तो सबसे ऊपर वाला पहले आप हैंड रब करते हैं, और जो सबसे ऊपर वाला ग्लव्स है वो उतार के वहां येलो बिन में डाल देते हैं। उसके बाद जो सेकेंड अनकंटामिनेटेड ग्लव्स है वो लेके फिर आप अपने डॉफिंग एरिया में आते हैं। पेशेंट एरिया में डॉफिंग नहीं होता है, जैसे कि अगर हमारा पेशेंट फर्स्ट फ्लोर पे है, थर्ड फ्लोर पे है, तो डॉफिंग एरिया जो है वो है ग्राउंड फ्लोर पे, वहां एक रूम है, वहां पे डॉफिंग होती है। तो डॉफिंग एरिया में आप आते हैं, फिर आप क्या करते हैं? गाउन को पूरा खोलते हैं। जो आपका सील गाउन है तो हमारे आगे से ओपन होता है, ओपन करते हैं तो उल्टा घुमाते हुए ओपन किया जाता है, सो दैट उसका कभी भी आउटर कवरिंग आपकी बॉडी को टच नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। तो उल्टा घुमाते हुए हम उतारते हैं, और जो ऊपर वाला ग्लव्स है जो कफ के ऊपर था वो साथ में उतारते हुए डाल देते हैं डस्टबिन में, जो येलो डस्टबिन वहां पे डॉफिंग एरिया में रखा हुआ होता है। फिर हम अगर चाहें तो दूसरा हैंड ग्लव पहन सकते हैं, और हैंड ग्लव पहनने के बाद हम लोग शूज रिमूव करते हैं, क्योंकि आपने पूरा आपका पीपी किट उतारा, उसके बाद हम शू कवर जो है वो हम रिमूव करते हैं। फिर हम ग्लव्स रिमूव करते हैं। जब आप ग्लव्स रिमूव करते हैं तो पहले वाला ग्लव है जो इंटरनल एरिया है उसको पकड़ के खोला जाता है, सेकेंड वाला जो है वो अंदर से पकड़ के खोला जाता है। जब आपने ग्लव्स रिमूव कर लिए, हैंड वॉश करते हैं। हैंड वॉश हम तो प्रेफर करते हैं कि आप हैंड वॉश करें, हैंड रब करें, और उसके बाद जो है आप अपना फेस का उतारते हैं, तो दैट इज आई शील्ड एंड आपका N95 मास्क। तो आपने पहले ग्रीन उतार दिया, फिर उसके बाद आपने आई शील्ड। फेस हमेशा याद रखना, जब भी आप डॉफिंग कर रहे हैं, आपका डॉफिंग का यानी कि आपकी पीपी किट का बाहर का कोई भी एरिया आपकी बॉडी से टच नहीं होना चाहिए। उल्टा जो घुमा के हम उतारते हैं वैसे हम लोग उतारते हैं, क्योंकि हमें वो सीधा फेंकना ही होता है, डिस्कार्ड ही करना होता है।
फिर उसके बाद जब भी आप पीपी किट पूरा उतार रहे हैं, आप ये हमेशा याद रखिएगा कि फेस का कोई भी चीज उतारने से पहले आपको हैंड वॉश करना है, हैंड रब करना है। जितना टाइम लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 20 से 25 मिनट लगे, आराम से बैठ के डॉफिंग कीजिए, क्योंकि ड्यूटी जो होती है वो 6 आवर्स की होती है, उससे ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि डॉफिंग एक बार आपने पीपी किट पहन लिया तो आप उसके बाद आप उसको उतार नहीं सकते हैं। तो इसीलिए आप फिर उसके बाद वॉश करते हैं, हैंड वॉश करते हैं, फिर ट्रिपल लेयर मास्क पहनते हैं, देन आपको पूरा स्क्रब होना पड़ता है और मतलब वापस वॉश होना पड़ता है, फिर आप अपने घर के कपड़े पहनते हैं और बाहर निकलते हैं। तो ये जो है डॉफिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां इन्होंने किसी ने भी गलती की डॉफिंग के अंदर तो रिस्क ऑफ कंटामिनेशन रहेगा। अब ये है कुछ डूस एंड डोंट्स जो हमें करने होते हैं कि हमें क्या करना है डॉनिंग एंड डॉफिंग से पहले। तो जब भी आप डॉनिंग एंड डॉफिंग यानी पीपी किट पहनने वाले हैं तो हमेशा क्या करना है, ऑलवेज वियर पीपी। तो उससे पहले खाना खा लेना है, पानी पी लेना है, ब्लैडर क्लियर मतलब वॉशरूम चले जाना है, क्योंकि एक बार आपने पीपी किट पहन लिया तो उसके बाद आप ना पानी पी पाएंगे, नहीं पीना है। आपने पीपी किट पहन लिया और पेशेंट के पास चले गए, एक बार पूरा कंप्लीट हो गया तो उसके बीच में आप ना तो पानी पी सकते हैं, ना आप बाउल मतलब वॉशरूम यूज कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना होता है। उसके बाद जितने भी आपके स्टैंडर्ड गाइडलाइन है वो आपको फॉलो करने होते हैं। फ्रीक्वेंट हैंड सैनिटाइजर और हैंड रब यूज करना है। कफिंग एटिकेट आपको पता है कि कफिंग एटिकेट है वो फॉलो करनी है। और बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल, कहीं भी कोई चीज नहीं डालती है, सिर्फ येलो बिन में चीजें डालते हैं। तो जो हमें नहीं करना है, ईयर रिंग नहीं पहनना है, बैंगल्स नहीं पहनना है, फोन टैबलेट कुछ भी लेके नहीं जाना है, वाटर बॉटल कुछ भी लेके पेशेंट केयर एरिया में नहीं जाना है। अगर स्टूडेंट की कंडीशन है और वो पीपी किट पहना, नो पॉकेट आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल कुछ भी, नॉट इवन पेन भी अपना लेके हम लोग नहीं जाते हैं कोविड एरिया में। तो मोबाइल नहीं पहनना है, चेन्स नहीं पहनना है, ईयर रिंग, बैंगल, कोई भी चीज जो आपकी बिलोंगिंग्स है आपको वो पहन के कोविड एरिया में नहीं जाना। जब आप पीपी डायरेक्ट पेशेंट की केयर में जा रहे तो आपको वो सब चीजें नहीं पहननी होती है। पर्सनल स्टेथोस्कोप, जिसे हम लोग बीइंग अ स्टूडेंट पॉकेट आर्टिकल्स रख लेते हैं, वो भी नहीं रखना है। अपना पर्सनल कोई चीज लेके नहीं जाते हैं। अननेसेसरीली अगर आपने पूरा पीपी किट पहन भी रखा है तो भी जरूरत नहीं है, तो अननेसेसरीली पेशेंट और सराउंडिंग को टच नहीं करना है। किसी भी कंडीशन में कितना भी पसीना टपक रहा हो, बह रहा हो, क्योंकि अंदर हमें पता है कि पूरा सील्ड होता है, पूरे पसीने में नहा जाते हैं, लेकिन फेस एरिया में टच नहीं करना है। कोविड एरिया मैंने बोल दिया कि एक बार पीपी किट आपने पहन लिया, ना आप खा सकते हैं ना आप पानी पी सकते हैं, मतलब आपको नहीं पीना है। कि कई बार ऐसा ना मास्क खोल लिया और एक घूंट पानी पी लिया, इन्फेक्ट हो जाएंगे, ऐसा हुआ है। तो इसीलिए जहां पे हम बोलते हैं ना कि स्टाफ को पीपी किट अवेलेबल था, डिस्पाइट ऑफ दैट दे आर इन्फेक्टेड, तो उन्होंने ये काम किया है, इसीलिए इन्फेक्शन हुआ है। आउटर एरिया ऑफ मास्क को टच नहीं करना है और अननेसेसरीली कोविड एरिया में हमें नहीं जाना है। तो ये सारी प्रिकॉशंस है जो हमारी प्रिपेयर्डनेस के लिए, हमारी सेफगार्ड के लिए, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें ये सारी चीजें करनी है। तो एक बार ये चीज आ जाती है, सिर्फ 2 दिन का रहता है कि हमको ये थोड़ा सा लगता है कि हम कैसे पहनेंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक बार हम जब पहनने लगते हैं और ये सारी प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं तो उसके बाद हमारी जो प्रॉब्लम एंड हेजिटेशन है वो चली जाती है। अब प्रैक्टिसेस इन केयर ऑफ कोविड-19 की हम क्या प्रैक्टिसेस करते हैं, तो अगर हम नर्सिंग केयर पर्सपेक्टिव देखें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है ट्राइजिंग, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 तरह के होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। रेड के अंदर भी 3 कैटेगरी होती है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। जो लेवल 3 होता है वो सबसे क्रिटिकल होता है। फिर सेकंड होता है सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन का मतलब है कि सैंपल आप कैसे कलेक्ट, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि पेशेंट हमारे पास है तो हमें सैंपल्स भेजना रहता है, कोविड सैंपल्स भेजना रहता है। देन पेशेंट मॉनिटरिंग के, जब हम पेशेंट के पास है हमें क्या मॉनिटर करना है और हमें क्या चीजें करनी है। आइडेंटिफाइंग द वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स, दैट मीन्स कि अगर पेशेंट डिटोरिएट हो रहा है और एनी टाइम इमरजेंसी की जरूरत होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मेडिकेशंस हम कौन से देते हैं और इमोशनल सपोर्ट की जरूरत क्या पड़ती है। तो ये जो है वो नर्सिंग केयर पर्सपेक्टिव के अंदर आता है। सबसे पहले होता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी ट्राइजिंग डिस्कस कर लिए सबसे इनिशियली कि ट्राइजिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी होती है और हम क्या क्या करते हैं। सेकंड जो होता है वो सैंपल कलेक्शन होता है।
दो तरह का सैंपल कलेक्ट, वैसे तो 2-3 तरह का होता है, जैसे लोअर सैंपल कलेक्शन भी होता है, लोअर लंग से भी हम ब्रोंकियल एस्पिरेट लेते हैं, ट्रेकियल एस्पिरेट लेते हैं, लेकिन जो सिंपल सैंपल कलेक्शन है वो जो होता है वो ओरोफेरिंजियल स्वैब लेते हैं, जिसे हम थ्रोट स्वैब बोलते हैं, और नैसोफेरिंजियल स्वैब बोलते हैं। तो ये 2 स्वैब हम लोग लेते हैं। तो उसके अंदर जो भी बंदा स्वैब ले रहा है वो पूरा पीपी किट पहनेगा, पूरा पीपी किट पहन के बैरियर। तो आपने देखा होगा कि ये जो 2 फोटो दिख रहे हैं वो केरला और अदर डिस्ट्रिक्ट के हैं, जहाँ पे सैंपल कलेक्शन बूथ्स अवेलेबल है, जहाँ पे उन्होंने क्या किया है, पीपी किट का जो यूज है प्रिवेंशन किया हुआ है कि इतने सारे पीपी किट कहाँ से लेके आएंगे, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होते हैं। सेकेंड चीज जो होती है वो होती है जो ऊपर वाला हमें देख रहे हैं, दिस इज आवर सेटअप, कि हम लोगों के पास ये बूथ अवेलेबल नहीं है तो हम लोग कैसे लेंगे। तो पूरा पीपी किट पहन के पेशेंट को बैठा के उसको 70 डिग्री पे उसका हेड को टिल्ट करके पोस्टीरियर फेरिंग से हम लोग क्या करते हैं, स्वैब जो टॉन्सिल्स होते हैं उसके ऊपर से 2 बार वाइप करते हैं और डायरेक्टली जो मीडिया होता है उसके अंदर हम प्लेस करके उसको भेज देते हैं। ओरोफेरिंजियल स्वैब भी सेम ही हम लेते हैं। तो नेजोफेरिंजियल और ओरोफेरिंजियल स्वैब हम लोग प्रेफर करते हैं। तो उसके अंदर पीपी किट पहनना जरूरी है किसी भी पेशेंट का, अगर स्वैब ले रहे हैं पूरे फुल प्रिकॉशन, क्योंकि जैसे ही आप अंदर ये करते हैं तो पेशेंट एकदम से खांस देता है, उसका गैग रिफ्लेक्स वो हो जाता है, एकदम से उसको छींक आ जाती है, तो ये सब चीज होती है, तो हम कंटामिनेट होंगे, हमें इन्फेक्शन का रिस्क है। तो पूरा पीपी किट पहन के ही हमें रिलैक्स पोजीशन में ये लेना होता है और उसके बाद डिसइंफेक्शन करना होता है। अब पेशेंट केयर मॉनिटरिंग, तो हमने बोला कि 3 तरह की कैटेगरी है जो कोरोना पेशेंट है, हमने इनिशियली डिस्कस किया था, माइल्ड, मॉडरेट एंड सिम्टम सीवियर। तो माइल्ड के अंदर जो हम पहला कैटेगरी लेवल 1, जिसके अंदर बहुत ज्यादा कोई साइनस सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो लेबोरेटरी से अगर टेस्ट हुआ है तो वो पॉजिटिव है, तो वो जो है वो माइल्ड सिम्टम्स के साथ आ रहा है। तो उसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइसोलेट द पेशेंट। आइसोलेट क्यों करना है, ब्रेक द चेन ऑफ कम्युनिकेशन, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले हम जो करते हैं वो आइसोलेट करते हैं पेशेंट को, तो ब्रेक करना है, आइसोलेट करना है। फिर उसके बाद जो हम करते हैं, पेशेंट रिस्क फैक्टर फॉर सीवियर इलनेस शुड बी मॉनिटर क्लोजली, कि हमारे पास जैसे कि ऐसा कई बार होता है कि पेशेंट नॉर्मल आता है और सडनली डिटेरियोरेट हो जाता है, सडनली वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, तो हमें देखना है और मॉनिटर करना है कि कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे। तो हमें क्या मॉनिटर करना है कि उसके वर्सनिंग ऑफ सिम्टम्स तो नहीं हो रहे, सांस लेने में बहुत ज्यादा तकलीफ तो नहीं हो रही है, चेस्ट पेन तो नहीं हो रहा, डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रहा, हेडेक होता है, वो बोलते हैं मसल एक हो रहा है, लेथार्जिक फील हो रहा है, तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। नॉर्मली जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं, जो माइल्ड कोरोना के पेशेंट होते हैं, उन्हें सिर्फ सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट दिया जाता है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के अंदर क्या आता है, एंटीबायोटिक्स देते हैं फीवर और पेन के लिए। एडिक्वेट न्यूट्रिशन बिल्कुल जरूरी है कोरोना पेशेंट, क्योंकि जितना पेशेंट, आपने बहुत सारे हॉस्पिटल जहाँ पे कोरोना पेशेंट ट्रीट हो रहे हैं, आपने सुना होगा कि न्यूट्रिशन पे बहुत ध्यान देते हैं। सिंपल न्यूट्रिशन, हाईली न्यूट्रिशियस फूड, प्रोटीन इंटेक अच्छे से, एप्रोप्रिएट हाइड्रेशन पेशेंट का मेंटेन करके रखते हैं, और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सिर्फ माइल्ड केसेस में दिया जाता है। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हम जो देते हैं वो माइल्ड केसेस में देते हैं। माइल्ड केसेस में कैसे देते हैं, तो वो ये जो है, ये हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यहाँ जो लिखा है वो, सॉरी मैं इस चीज के लिए वो बोल रही, दिस इज फॉर हेल्थ केयर वर्कर की हमने 400 mg बीडी दिया ए फर्स्ट डे, और फिर 400 mg वंस इन अ वीक दिया, वो हम लोग हेल्थ केयर वर्कर के लिए। पेशेंट के लिए जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं वो 400 mg बीडी देते हैं पहले दिन में, और फिर 400 mg वंस इन अ डे फॉर नेक्स्ट 4 days हम लोग पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जो पेशेंट को हम दे रहे हैं उनका कार्डियक मॉनिटरिंग करना बहुत जरूरी है। बिना ईसीजी लिए हम लोग हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन किसी भी पेशेंट को प्रोवाइड नहीं करते हैं, या किसी को भी प्रोवाइड नहीं करते हैं। और फिर भी है, अगर 60 ईयर्स से बड़ा ज्यादा बुजुर्ग इंसान है, क्रॉनिक लंग डिजीज है, लिवर डिजीज है, सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, तो इन लोगों को नहीं प्रोवाइड किया जाता। तो यहाँ पे एक चीज मैं ये करेक्शन बोलूंगी कि ये जो यहाँ पे डोसेस लिखा है, इट इज फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल। पेशेंट के लिए जो डोसेस है वो 400 mg बीडी जो होता है वो फर्स्ट डे दिया जाता है, और उसके बाद नेक्स्ट डे से नेक्स्ट 4 days के लिए उनको 400 mg वंस अ डे दिया जाता है। तो आप उसको डिवाइड करके 200 भी कर सकते हैं, या सिंगल डोज भी प्रोवाइड किया जा सकता है। चाइल्ड अंडर 15 ईयर ऑफ एज के अंदर हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन यूज नहीं करते हैं। प्रेग्नेंट मदर्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देते हैं। लैक्टेटिंग मदर्स को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देते हैं।
जिनको भी रीनल कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है उनको भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नहीं देते हैं। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लेना है। प्लस पेशेंट को भी हमें देखना है, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल हमें पता होना चाहिए कि पूरी हिस्ट्री लिए तो बच्चों को नहीं देना है, प्रेग्नेंट मदर्स को नहीं देना है जो कोविड पॉजिटिव है, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना है, और जितने भी हाइपरटेंसिव है, क्रोनिक लंग डिजीज है, किडनी लंग सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज है, सिर्फ डॉक्टर के सुपरविजन के अंदर ही हम देते हैं, अदरवाइज हम उनको प्रिस्क्राइब नहीं करते। जिनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं उनको हम पूरा मॉनिटर करते हैं। पहले ईसीजी लिया जाता है, ईसीजी के अंदर जब क्लैरिटी आती है देन ओनली क्यूटी वेव जो होता है उसके अंदर प्रोलॉन्गेशन नहीं है तो ही हम आगे प्रोवाइड करते हैं। मॉडरेट केसेस जो होते हैं वो रेस्पिरेटरी रेट अगर मोर देन इक्वल टू 24 है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जो बोलते हैं SpO2। अब आपको हम ये चीज बता दें कि जब हमने माइल्ड केसेस देखा था उसके अंदर जो बच्चा है या जो पेशेंट है वो क्या कर रहा है, आराम से मेंटेन करके रखा हुआ है, यानी उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, वो रूम एयर पे ठीक है, उसको एडिशनल हमें देने की जरूरत नहीं पड़ी है। अब अगर हम मॉडरेट केस देखें तो यहाँ पे हम लोग के साथ क्या होता है, रेस्पिरेटरी रेट जो होता है वो मोर देन एंड इक्वल टू 24, ऑक्सीजन जो सैचुरेशन बोलते हैं 94% तक होना चाहिए, वो भी रूम एयर में, रूम एयर यानी कि बिना O2 के। अगर केसेस या पेशेंट जो अगर SpO2 94% मेंटेन करके रख रहा है या फिर रेंज जो है 90 to 94% है तो वो मॉडरेट केस में आता है। उसमें भी सेम है, आइसोलेट करो, आइडेंटिफाई द कोमॉर्बिड कंडीशन, O2 सपोर्ट देते हैं और टारगेट SpO2 जो O2 का सैचुरेशन बोलते हैं हम लोग, जो हमें प्रॉब में दिखता है दैट इज 90 to 96%, और अगर COPD का पेशेंट है तो 80 to 92% होता है। ये थोड़ा सा फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए थोड़ा वो हो जाएगा। हाई फ्लो नेजल कैनुला या फिर नेजल कैनुला अगर यूज करते हैं, जैसे कि हमने बोला है कोई भी एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर हम लोग कोविड पेशेंट पे नहीं करते हैं, जैसे कि नेबुलाइज करना, ओपन नेबुलाइजेशन हम नहीं करते हैं, क्लोज सर्किट नेबुलाइजेशन ही करते हैं। तो अगर हमने कैनुला लगा रखा है या फिर हाई फ्लो नेजल कैनुला लगा रखा है तो पेशेंट को भी N95 मास्क उसके ऊपर पहना दिया जाता है, क्योंकि उससे क्या डेवलप होता है, एरोसोल डेवलप होता है जो कि बाहर वायरल लोड को बढ़ाएगा। तो इसीलिए क्लोज सर्किट मास्क हम प्रेफर करते हैं। क्लोज सर्किट जो सक्शन होता है, क्लोज सर्किट जो इंक्यूबेशन होता है, क्लोज जो भी करना है वो क्लोज सर्किट करना है। डायरेक्ट जो अब नेबुलाइज करना है वो सब हम नहीं करते पेशेंट में, क्योंकि ये एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर से जो कि कोविड एरिया में नहीं किया जाता है। अभी लेटेस्ट कॉन्सेप्ट या बहुत टाइम से कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, दैट इज अवेक प्रॉनिंग कैन बी यूज्ड। अवेक प्रॉनिंग यानी जब जगा हुआ है पेशेंट को जो प्रेफर्ड, अब अगर आप बोले कोविड पेशेंट को कौन सी पोजीशन देनी होती है, सुपाइन पोजीशन हम नहीं देते हैं, प्रॉन देते हैं, साइड लेटरल देते हैं, लेफ्ट राइट लेटरल लेफ्ट लेटरल देते हैं, लेकिन सुपाइन पोजीशन में हम नहीं लेटाते हैं। या तो पेशेंट प्रॉन पोजीशन में रहेगा या राइट लेटरल में रहेगा या लेफ्ट लेटरल में रहेगा या फिर 45 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड में हम लोग उसको फाउलस पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। क्यों? और अगर आपने सुपाइन दे दिया तो वो फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये अवेकनिंग प्रोनिंग बोलते हैं इसको। देन मॉनिटर आपको क्या करना है, इंक्रीज वर्क ऑफ ब्रीदिंग, अगर बहुत ज्यादा एक्सेसरी मसल्स यूज हो रही है तो हीमोडायनामिक स्टेबिलिटी हम देखते हैं, और अगर O2 की रिक्वायरमेंट बढ़ तो नहीं रही है, जैसे कि हम अभी कितने लीटर पे दे रहे थे, फ्लो इतना मेंटेन करा, उसका रिक्वायरमेंट बढ़ तो नहीं रहा है। जैसे अगर हमने रखा हुआ है FiO2 अगर हम दे रहे हैं तो अगर उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है तो मतलब कि पेशेंट जो है वो कॉम्प्लिकेट हो रहा है। ये चीजें हमें मॉनिटर करनी है बीइंग अ नर्स। ये है अवेकनिंग पोजीशन। अवेकनिंग पोजीशन में आपने देखा प्रोन पोजीशन, आराम से पिलो वगैरह सब लगा के प्रोन पोजीशन देते हैं, फिर लेफ्ट लेटरल देते हैं, फिर राइट लेटरल मत, और सिटिंग। यही पोजीशन हम लोग रोटेट करते हैं, सुपाइन पोजीशन प्रेफर नहीं करते हैं। तो ये इसीलिए क्योंकि लंग की जो कैपेसिटी है वो मैक्सिमम हो तो रिकवरी जल्दी होती है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन की भी जरूरत है तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होगी, रूम एयर पे है तो बहुत ज्यादा रूम एयर की जरूरत नहीं होगी, लंग खुलते। इसलिए मैंने बोला अभी से प्रैक्टिस कीजिए प्रोन की, जब कोविड एरिया में है अपने लंग को एक्सपैंड करने की कोशिश कीजिए और पेशेंट को भी वो सिखाइए। लंग एक्सपेंशन ये सारा होता है, इसको अवेक प्रोनिंग बोलते हैं। तो ये पोजीशंस हम प्रोवाइड करते हैं। नाउ सिवियर केसेस। सिवियर केसेस के अंदर हमें क्या करना होता है, तो सबसे सिवियर केसेस के अंदर सप्लीमेंटल ऑक्सीजन और ये चीजें जरूरी है। सीधा आईसीयू में जाता है पेशेंट, सीधा मॉनिटर में रहता है, डिटोरेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे पेशेंट को इंट्यूबेट करने की जरूरत पड़ेगी
NIV जो होता है वो हम वार्ड में प्रेफर नहीं करते। अगर NIV देना है, दैट इज नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन या हाई फ्लो नीजल कैनुला अगर लगा रहे हैं तो वो सिर्फ ICU में लगाया जाता है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव प्रेशर जनरेटेड है और बाइफरकेटेड चीजें वहां पे अवेलेबल है। अगर आप कोई भी कोविड एरिया में काम कर रहे हैं तो पल्स ऑक्सीमीटर बहुत जरूरी है। जो आपको मॉनिटर करना है वो क्या करना है, सैचुरेशन, पेशेंट सैचुरेशन मेंटेन करके रखना चाहिए। फंक्शनिंग आपका जो O2 सिस्टम है उसकी फंक्शनिंग अच्छी होनी चाहिए। जो भी यूज कर रहे हैं वो डिस्पोजेबल हम यूज करते हैं, लेकिन हम ये प्रेफर करते हैं या तो वो मास्क लगाए यानी कि फेस मास्क लगाए, या फिर हम लोग बोलते हैं कि एक बॉक्स तरह का होता है उसके अंदर हम O2 को फ्लो करवाते हैं, जिसे हुड बोलते हैं हम लोग। तो हुड हम करते हैं। अगर आपने कैनोला लगाया हुआ है तो उसके ऊपर फिर अगर आपने सिंपल कैनोला लगाया है तो यहाँ पे अगर आपने सील किया है नेजोसील से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर नेजोसील अवेलेबल नहीं है तो एरोसोल डेवलप हो सकते हैं। तो उस टाइम पे आपको ध्यान रखना होता है कि पेशेंट को मास्क पहनाना जरूरी होता है। फ्लूइड मैनेजमेंट यहाँ पे कंजर्वेटिव, जैसे हमने माइल्ड केसेस में क्या बोला था, फ्लूइड देना है अच्छे से, बहुत अच्छे से देना है, लेकिन सीवियर केसेस में फ्री फ्लो फ्लूइड नहीं दिया जाता, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट शॉक में होता है लेकिन उसको फ्लूइड की जरूरत नहीं होती है, अगर हम ज्यादा करेंगे तो ओवरलोड हो जाएगा। तो कंजर्वेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन चाइल्ड पेशेंट्स कंडीशन हम यहाँ पे बोलते हैं। इसके अंदर भी जो सीवियर केसेस होते हैं उनको सीवियर निमोनिया होता है, लंग पैची होता है, पूरा लंग कंसोलिडेट हो चुका होता है, उनको एरेशन नहीं हो रहा होता है, तब हम लोग उनको सीवियर केसेस बोल रहे हैं, सीवियर डिस्निया हो रहा है। ऐसे ही अगर ये सारी चीजें आप देख रहे हैं और कॉम्प्लिकेटेड केसेस हैं, इंट्यूबेशन की जरूरत है, तो क्लोज सर्किट इंट्यूबेशन किया जाता है, जिसके लिए बॉक्सेस अवेलेबल है। और मैनेजमेंट ऑफ शॉक एंड कोमॉर्बिड कंडीशन जो अलग है, जैसे मल्टी ऑर्गन फेलियर, जितनी भी डेथ्स होती हैं उनमें कोमॉर्बिड कंडीशंस प्रेजेंट रहती है, या तो पेशेंट पहले से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, कोई और प्रॉब्लम रही है, बीपी, शुगर, हाइपरटेंशन, ये सारी चीजें हैं, हेल्दी नहीं है और ओल्ड एज है या वेरी यंग एज है, तो उन कोमॉर्बिड कंडीशन को हमको रीनल फेलियर है, लिवर फंक्शन है, कार्डियक प्रॉब्लम है, ये सारे कोमॉर्बिड कंडीशन को भी हमें साथ में ट्रीट करना होता है। तो अभी हमने जितना भी बताया ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पूरा चार्ट है जो कि अभी हमने बताया था, वो सारी चीजें इसके अंदर समराइज करके दी हुई है। अगेन मैं रिपीट नहीं कर रही क्योंकि ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर बंदा या पेशेंट अगर रूम एयर पे है दैट मीन्स कि वो स्टेबल है, तो यहाँ पर भी गाइडलाइन हम ये देते हैं कि अगर वो रूम एयर पे, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कोरोना के पेशेंट की केयर के लिए वो है साइकोलॉजिकल सपोर्ट, क्योंकि वहां पे आप रिलेटिव को अलाउ नहीं कर रहे हैं, कोई रिलेटिव नहीं आ पा रहा है, कोई उनका मिलने वाला नहीं आ पा रहा है, आप बात नहीं कर सकते, अदर रिक्रिएशनल फैसिलिटी नहीं है, एक रूम के अंदर आपको बंद कर दिया जाता है, तो आप सोचिए कि कितनी घुटन फील होती है। ऊपर से आपको ये भी बता दिया जाए कि कोरोना है तो उनका साइकोलॉजिकल कंडीशन कितना डिटेरियोरेट होता है। यहाँ नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। यहाँ आपने ये नर्स को देखा होगा, ये हमारे ICU का है, नर्स ने अपने गाउन के ऊपर PP किट के ऊपर लिखा हुआ है नाम और डेजिग्नेशन, बहुत जरूरी है क्योंकि PP किट पहनने के बाद हमें क्या पता हमारे पास कौन आया, तो आपको अपना नाम उस पर लिखना है और आप कौन है ये भी लिखना है, ताकि पेशेंट और अदर पीपल आपको आराम से रिकॉग्नाइज करें। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज यहाँ होता है क्योंकि इतना सब पहनने के बाद कम्युनिकेट करना पेशेंट से बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हमारा जो गेस्चर है, बॉडी गेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, वो कैरिंग हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सपोर्टिव रहिए, साइकोलॉजिकल सपोर्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन अ रिकवरी। अगर पेशेंट पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है और विलिंग है कि वो रिकवर हो जाएगा, पेशेंट रिकवर हो जाएगा, अगर अदर कॉम्प्लिकेटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है तो ये सारी चीजें हमें बहुत जरूरी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, इसके अंदर येलो बीन के अंदर ही बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो अलग रखे जाते हैं और ट्यूबिंग सब अलग रखी जाती है, लेकिन सब शार्प इंस्ट्रूमेंट जो बॉक्स होता है वो पंचर प्रूफ बॉक्स होता है जो बाद में येलो के अंदर पैक करते हैं। जो बाकी का वेस्ट है, PP किट है, पेशेंट साइड वेस्ट है, वो डायरेक्टली 1%, जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं उसको 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन से ट्रीट करने के बाद ही हम लोग उसको पॉलीबैग में पैक करते हैं। हॉस्पिटल लेवल पे कोई भी डिसइंफेक्शन इन चीजों का ट्रीटमेंट नहीं होता, ये सीधा जाता है सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में जाता है। इवन जो बेडशीट्स भी होती है वो 1% हाइपोक्लोराइड सोल्यूशन में डाल के
डायरेक्ट जो फर्स्ट येलो पॉलीथीन होती है उसके अंदर डाल के पैक करते हैं, फिर सेकेंड येलो पॉलीथीन होती है उसके अंदर डाल के पैक करते हैं, फिर लेबल करते हैं इट इज अ कोविड-19 वेस्ट करके। और इन सब का जो है वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, वहां पे जाके इसका ट्रीटमेंट एंड सेग्रीगेशन होता है। बट ये है कि शार्प इंस्ट्रूमेंट को दूसरे के साथ नहीं डालना है क्योंकि ये थैली फट जाएगी ना। तो शार्प इंस्ट्रूमेंट जो है, बॉटल्स है, अदर चीज है, वो पंचर प्रूफ कंटेनर में डाल के फिर येलो बॉक्स में डाल के उसको पूरा सील किया जाता है, ऊपर से कवर किया जाता है, सबके ऊपर लिखा जाता है कोविड वेस्ट। कोई भी कोविड वेस्ट बाहर डिस्कार्ड नहीं करते हैं, कहीं भी नहीं डालते हैं, जनरल किसी भी बॉक्स में नहीं डालते हैं, हॉस्पिटल के अदर वेस्ट के साथ भी उसको मिक्स नहीं किया जाता है। सारी चीजों को येलो में पूरा कवर करके सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड में भेजा जाता है, जहां पे इनका सेग्रीगेशन और डिसइंफेक्शन और ट्रीटमेंट होता है। ट्रीटमेंट भी पैरालाइसिस और बहुत सारे ट्रीटमेंट होते हैं जो कि हाई टेम्परेचर भी किए जाते हैं। अब खाने की बात है, न्यूट्रिशन प्लेट्स यूज नहीं की जाती, डिस्पोजल्स ही यूज किए जाते हैं। जो भी चीज देना है, स्टाफ को देना है, पेशेंट को देना है, वो डिस्पोजल्स में ही दिया जाता है ताकि यूज करें, खाएं और सीधा उसको डिस्पोज करें, क्लीन करके उसको रीयूज नहीं किया जाता है। तो जो भी खाने का सामान होता है वो डिस्पोजेबल्स में ही दिए जाते हैं। तो अगर अब हम सिंपल बात करें तो यहाँ पे मैं सिर्फ लास्ट में यही कहना चाहूंगी, बीइंग अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल, बीइंग अ स्टाफ, जो आपका आइसोलेशन एरिया है, मतलब आपने अगर कोविड एरिया में काम किया है तो आप घर की किसी भी एरिया में कंटामिनेट नहीं करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे तो ये फैसिलिटी है कि डायरेक्ट होटल रूम्स में भेज दिया जाता है, सबको अलग अलग होटल रूम प्रोवाइड किए हैं, वो लोग अपने घर नहीं जाते हैं, वो होटल रूम्स, हॉस्टल में भी नहीं आते हैं, उनको होटल रूम्स में भेजा जाता है। वो यहाँ की नॉर्मल जो स्टाफ हैं, जो अदर सपोर्टिव स्टाफ है, उनसे कंटामिनेटेड और कांटेक्ट में नहीं रहते हैं, वो सीधे वहां जाते हैं। उनकी सिर्फ 6 डेज की ड्यूटी होती है, या 5 डेज इन अ वीक होता है, या 6 डेज इन अ वीक होता है, और 6 आवर्स का ही शिफ्ट होता है, क्योंकि पीपी किट पहन के बिना पानी पिए, बिना वॉशरूम यूज किए और इतनी गर्मी और इतने पसीने में काम करना बहुत लंबे टाइम तक पॉसिबल नहीं है। तो 6 आवर का शिफ्ट होता है, उससे पहले उनको प्रॉपर्ली खिलाया जाता है, हाइड्रेट करना होता है, मल्टीविटामिन उनको कंटिन्यूअसली दे रहे होते हैं। और उसके बाद जब आपका 6 डेज का शिफ्ट कंप्लीट होता है तो फिर 14 डेज के लिए स्टाफ को क्वारंटाइन किया जाता है। भले ही एक जो स्टाफ है उसका सिर्फ 6 डेज का शिफ्ट ही होता है, 6 डेज का शिफ्ट किया, ऐसा नहीं कि महीने महीने भर तक काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता है। 6 डेज 6 आवर्स काम करने के बाद, 6 डेज 6 आवर्स पर डे काम करने के बाद 14 डेज के लिए उनको क्वारंटाइन रखा जाता है वही होटल में। 14 डेज बाकी सारी फैसिलिटी, रिक्रिएशन फैसिलिटी सब कुछ उनको प्रोवाइड की जा रही है, तो वहां पे क्वारंटाइन रहते हैं। कोई साइन एंड सिम्टम डेवलप नहीं होता है तो नेक्स्ट ड्यूटी ऑफ रोटेशन उनका डलता है। तो यहाँ बहुत जरूरी है कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर है या फैकल्टी है तो हमें पता होना चाहिए कि 30% लीव रिजर्व रखते हैं, ओनली रिक्वायर्ड स्टाफ को ही हम लोग वहां पे रोटेशन में डालते हैं। 14 डेज के क्वारंटाइन के बाद उनको देखते हैं कि अगर कोई सिम्टम्स डेवलप नहीं है तो ही हम लोग उनको पोस्ट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि 6 डेज ड्यूटी किया, 14 दिन क्वारंटाइन रहे, फिर 6 डेज ड्यूटी किया, फिर 14 दिन क्वारंटाइन रहे। ये साइकिल्स चलती रहती है जब तक कि हमारे पास पेशेंट है। तो एट ए टाइम सारे के सारे स्टाफ को हम लोग पोस्ट नहीं करते हैं। बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो अपने लेवल पे सारी चीजें मैनेज करके रखते हैं। बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ स्टाफ, जैसे कि आपको पता होगा यहाँ तो हम लोगों ने स्टूडेंट को पोस्ट नहीं किया, लेकिन राजस्थान वगैरह में ऐसे कई जगह हैं जहाँ पे गवर्नमेंट में जितने भी गवर्नमेंट स्टूडेंट है, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जीएनएम, उन सबको सर्वे और सारी चीजों के लिए यूज किया जा रहा है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के स्टूडेंट्स हैं तो वो लोग सर्वे वगैरह सब जाते हैं, तो वहां पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। टीचर्स जो है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, तो वहां पे टीचर्स को एक दिन की भी लीव नहीं मिली हुई है, वहां पे टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है स्टूडेंट को सेफ गार्ड करना। तो वो लोगों को N95 मास्क पहन रहे हैं, वो लोग प्रॉपर प्रिकॉशन ले रहे हैं। जिस एरिया में उनको सर्वे के लिए भेजा जाता है, उनको वार्ड में नहीं भेजते, कम्युनिटी सर्वे के लिए भेजा जाता है। तो ऐसा अगर कुछ हो रहा है तो भी हमें बिल्कुल सेफ गार्ड करके रखना है। तो बीइंग अ टीचर हमें पता होना चाहिए डॉनिंग डॉफिंग बहुत जरूरी है, मेंटल हेल्थ बहुत जरूरी है। किसी भी पॉइंट में कोई भी स्टूडेंट अगर आपके पास आके आता है पैनिक कंडीशन में, टेंस है, स्ट्रेस्ड है, उनको डांटना नहीं है, क्योंकि हम खुद समझ सकते हैं कि जब आपको टेंशन और स्ट्रेस होते हैं तो हम लोग बहुत ज्यादा एंगर शो करते हैं, तो उस टाइम उन्हें काम डाउन करना है एंड बिहेव लाइक अ गुड लीडर। तो हम बहुत अच्छे से उनको काउंसिल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर हम लोग काउंसिल कर रहे हैं तो हमें भी लीडरशिप लेना होता है। तो हम लोग भी इन्वॉल्व थे जब हम लोग रेड एरिया में, जब हमारा हॉस्पिटल था, तो हम रेड जोन के जितने भी स्टाफ थे, सपोर्टिव स्टाफ थे, इलेक्ट्रिशियन, हाउसकीपिंग, सबको हम लोग पीपी और सारी इन्फेक्शन कंट्रोल सबकी ट्रेनिंग देते थे। उन लोगों को डेजिग्नेटेड रहता है कि वो 20 मिनट से ज्यादा
डायरेक्ट पेशेंट एरिया में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, क्योंकि वो लोग हाउसकीपिंग स्टाफ है, क्योंकि वो रोटेशन में आते हैं। जैसे नर्सिंग स्टाफ है वो पूरा क्वारंटाइन रहता है, तो जितने भी हाउसकीपिंग हैं जो कि कोविड रेड जोन में काम कर रहे हैं वो ग्रीन जोन के साथ मिक्स नहीं होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि अगर आप ध्यान रखेंगे तो बीइंग अ स्टूडेंट हम लोग आराम से कर पाएंगे। ये बहुत ज्यादा इतना प्रॉब्लम नहीं है। चीज है कि अवेयरनेस होनी चाहिए, क्या चीज कैसे करना है वो प्रॉपर बताना है। वो सारी चीजें अगर हमने कर ली तो वी विल एबल टू मेंटेन द थिंग और हम लोग बिल्कुल सपोर्ट कर पाएंगे। तो लास्ट में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। डेफिनेटली नई चीज है, नया चीज को एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन इट्स अ न्यू अपॉर्चुनिटी। जब पहली बार पीपी किट हमारे हाथ में भी आया था तो हम भी उसको लर्न कर रहे थे देख देख के कि किसको इसको कैसे पहनना है। हमने इवन स्टाफ को बताने के लिए कि पीपी किट सेफ है, हम लोग उसमें पानी डाल रहे हैं, सोल्यूशन डाल के देख रहे हैं कि वो लीकिंग तो नहीं हो रही है, जितने भी सील एरिया है उसको प्लास्टिक से कवर करके रख रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं। तो अगर ट्रू प्रोफेशनल है तो वी हैव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस एंड वी हैव टू ओवरकम इट। तो वी एज ए नर्स डेफिनेटली वी आर द फ्रंट लाइनर्स, तो वी हैव टू प्रिपेयर फॉर आवरसेल्फ। ये जो है हमारे ही हॉस्पिटल के बच्चे हैं और ये कार्ड हमारे ही डॉक्टर्स ने बनाए हुए हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव थे। और ये जो थैंक यू कार्ड बना है वो भी डॉक्टर्स ने स्टाफ नर्सेस के लिए बनाया हुआ है ऑन नर्सेस डे, क्योंकि सारे डेडिकेटेड हैं। तो ये हमारे वहाँ के बच्चे हैं जो कि पॉजिटिव थे लेकिन सब डिस्चार्ज हो गए हैं। और बच्चों में बहुत इम्यूनिटी रहती है, लेकिन अगर आप उसको प्रॉपरली केयर करेंगे, प्रॉपरली अर्ली आइडेंटिफिकेशन मैटर्स अ लॉट। कॉन्टैक्ट हैंड हाइजीन, कॉन्टैक्ट हाइजीन अगर ये सब मेंटेन करेंगे तो हम लोग डेफिनेटली कोरोना को बीट कर सकते हैं। थैंक यू मैम, ओवर टू यू। अगर कोई क्वेरी है तो दे कैन आस्क। Thank you so much, ma'am. It was really wonderful and very informative session. It was more than my expectation, Shrija ma'am. Thank you so much, ma'am. I'm enlightened to hear your presentation, and it was really many new things even I have learned. Definitely, I hope that this was very wonderful and very useful session for all the students. Students, though time is less, but still if you want to ask any question, please ask. You can write your question on chat box. I will forward to madam. Unmute kar do. You all are, you can unmute yourself and ask question. Actually, students have many query about COVID-19. By listening Shrija ma'am's presentation, you can make out that we have learned something, and we should not behave like other people who are not trained. We are nurses, and anyhow, we should not give up. We should participate in each and every disaster. It may be natural, man-made, or anything. It is also a kind of disaster, and we nurses should never give up. Shrija madam is an example. They have given training. Chaitram is a designated center for COVID-19 patients care. They have given training. They have taken care of many patients, and many patients recovered from here. And this is a very good job they have done. Clapping for Shrija ma'am. Thank you, ma'am. It's a teamwork actually. The whole team is with Yes, everybody. Yes, ma'am. Not a single person's effort. It's my part ki main jitna bata pai. Otherwise, it's a complete faculty and team is involved. In future, after a few months, again I'll call because this was very informative, and whatever updations you people are getting, you can share, because this matter even we are not getting in media or anywhere. There is no designated book for it at present. So this information was wonderful and very useful. Madam, thank you so much. I extend my thanks to Aradhana madam also. Actually, I approached to Aradhana madam, and Yes, madam has provided me such a wonderful teacher who taught very nicely. So thank you, Shrija ma'am. Thank you so much. On behalf of my Vikrant institution, I extend my heartiest thanks to you. My MD sir is busy today, and he conveyed regard to you. He said, extend my thanks on behalf of BGI family. Thank you so much, ma'am.
Thank you, In ma'am, future- and I also in want to future- thank Aradha ma'am to providing me this opportunity, because of ma'am only I am preparing all these things and presenting. Thank you so much. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you.